respected Devendra Kumar Saniji, and dear audience, all my fellow colleagues, and dear students. Today we are here to know about the rights of a consumer because we all are consumers. Every day we purchase something. As you all know, Consumer Protection Act 2019 has been implemented with effect from 20th July 2020. But the point is that we all know, being a common man, we are not aware about all our rights. Keeping in view of this situation, I invite Devendra Kumar Saini. Sir, you are Additional Advocate General for Government of Haryana at Honorable Supreme Court of India, and you have successfully completed your Masters in Public Administration and you are law graduate. Sir, you are international speaker and you have delivered a series of lectures. One of them is very much important to note here, that is the lecture which you have delivered at BRICS forum at Russia, and you have published so many articles in the journals, magazines of national and international repute. Sir, you also traveled different countries like Britain, Scotland, Ireland, St. Petersburg, Moscow, and Russia. With these words, I welcome you, sir. Being the professor and chairperson, Department of Commerce, I invite you to speak and to elaborate and to expose your experience and to explore the ideas and share all these ideas with our audience. Welcome, sir. Devendra Thank Kumar you. Sani ji, please. Thank you, Ji, sir. Surendra ji. Audible? Ji, ji. Thank you, Surendra ji, for speaking much high about me. So, what would be the language of the communication? Is it mixed language or it is in English only or Hindi? What? Mix you can utilize, sir. Mixed language. Okay. Yes, because of our MCOM students are also there from this university and other colleges, All and right. teachers are also there, and some of Fine. advocates are also joined this meet. Very well. I am very happy that advocates have joined this Yeah, why not? because it will certainly help them. Because I have Yes, so sir. many years experience, and because I am practicing in Supreme Court, therefore I see there are a lot of I think mistakes at district level advocates during these consumer cases. Well, so when we talk about consumer rights, the first and the most important act which come into existence is Consumer Protection Act, which is new act now, because older act was having some issues, and with the passage of time and with the Supreme Court orders, National Consumer Commission orders, several things has been updated and modified. Now it is the Consumer Protection Act 2019. सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। कोई भी कानून जब बनता है तो किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनता है, तो वो उद्देश्य क्या है उसके बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक पूरा हमारे जो राइट्स हैं और कैसे वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से प्रोटेक्ट होते हैं उसको ठीक ठीक समझ नहीं पाएंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करें, एन एक्ट to provide for protection of interest of consumers and for the said purpose to establish authorities for timely and effective administration and settlement of consumers dispute and for matters connected therewith or incidental thereto। यानी कि डायरेक्ट जो जुड़े हैं, डायरेक्ट जो कंज्यूमर से रिलेटेड हैं या इंसिडेंटल हैं, आप कंज्यूमर हो उसके इंसिडेंटल जो भी आपके राइट्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं सेलर और कंज्यूमर के बीच, वो इस एक्ट से गवर्न होते हैं और इस एक्ट में कंज्यूमर्स को अपना जो राइट है वो मांगने के लिए एक प्रोसेस एस्टेब्लिश किया गया है। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। उन डेफिनेशंस के बिना हम ठीक ठीक अपने राइट्स के बारे में या कंज्यूमर एक्ट एक्चुअल में क्या कहता है, किस शब्द की कैसे वो डिफाइन करता है,
किस शब्द के अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं तब तक हमें पता लगेगा नहीं। सेक्शन 2 जो है उसमें डेफिनेशंस हैं, जो अपने साथ एडवोकेट जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कंज्यूमर क्या है। क्योंकि जब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता था अपने इनिशियल फेज में, तो मेरे साथ भी, मेरे और कुछ साथियों के साथ भी ये प्रॉब्लम उस समय आती थी कि कंज्यूमर में हम किस किस को शामिल करें, वो भी हम देखेंगे। और उससे पहले देख लेते हैं कि कंप्लेनेंट कौन है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो अपना है, सीआरपीसी जो प्रोसीजरल लॉ है, उसमें कंप्लेनेंट की कोई स्पेलिंग नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है कि कंप्लेनेंट कौन होगा। कोई विशेष ऐसा नहीं है कि किसी के घर में डेथ हुई या मर्डर हो गया तो उसके रिलेटिव भी कंप्लेनेंट होंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है, आइए देखते हैं। कंप्लेनेंट कौन कौन हो सकता है, इसका सेक्शन 2 का सबसेक्शन 5 है। वो कहता है कि कंप्लेनेंट मीन्स ए कंज्यूमर और any voluntary consumer association registered under any law for the time being in force, or central government or any state government or central authority or one or more consumers where there are numerous consumers having the same interest, or in case of death of a consumer his legal heirs or legal representatives, or in case of consumer being a minor हिज पेरेंट और लीगल गार्जियन। तो ये कंप्लेनेंट की डेफिनेशन में आता है। इसमें स्पेसिफाई किया है कि कंप्लेनेंट कौन होगा। जैसे क्रिमिनल अपने जो एक्ट है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें कंप्लेनेंट कौन होगा ऐसे डिफाइन नहीं है, पड़ोसी भी हो सकता है। जिसने जो विक्टिम नहीं है, जो क्राइम का विक्टिम नहीं है, वो भी कंप्लेनेंट हो सकता है अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। मगर यहाँ पे कंप्लेनेंट की को डिफाइन किया हुआ है कि इन चीजों के रहते हुए यही कंप्लेनेंट हो सकते हैं और यही कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब आया कंप्लेंट का मीनिंग क्या है, क्योंकि इसमें केस जब हम फाइल करते हैं, एडवोकेट तो सारे समझते ही हैं, बाकी इसमें जो केस फाइल होता है वो कंज्यूमर कंप्लेंट के नाम से फाइल होता है। कंज्यूमर कंप्लेंट अंडर सेक्शन सो ऐसे कंप्लेंट की तरह से वो फाइल होता है। तो कंप्लेंट का मीनिंग क्या है? कंप्लेंट मीन्स any allegation in writing made by a complainant for obtaining any relief provided by or under this act, that वो कौन कौन से हैं? An unfair contract or unfair trade practice or a restrictive trade practice has been adopted by any trader or service provider. उसका subsection 2 है, the goods brought by him और agreed to be brought by him, agreed भी इसमें शामिल है। ये ध्यान करने वाली बात है, क्योंकि ये चीज तो सभी समझते हैं कि अगर कोई चीज खरीदी है तो हम कंज्यूमर हो गए तो हम कंप्लेनेंट भी हो गए और कंप्लेंट हम फाइल कर सकते हैं। मगर इसमें क्या लिखा है साथ में, और agreed to be bought by him suffers from one or more defect। एग्री वाला भी है कि भी मैंने चीज खरीदने के लिए एग्री कर लिया उससे, और उसमें कोई पूरी पेमेंट नहीं दी, अभी हाफ पेमेंट दी है, कुछ हमारी टर्म्स ऐसी थी और उसमें कुछ डिफेक्ट निकल आया, तो कंप्लेंट फाइल होगी। द गुड्स, द सर्विस हायर्ड, गुड्स के साथ सर्विस भी शामिल है। सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड ऑफ और एग्रीड टू बी हायर्ड और अवेल्ड ऑफ बाय हिम सफर फ्रॉम एनी डिफिशियंसी। ए ट्रेडर और ए सर्विस प्रोवाइडर, एज द केस में बी, हैज चार्ज्ड फॉर द गुड्स or for the service mentioned in the complaint a price in excess of price, अगर प्राइस ज्यादा लिया तो भी, a price fixed by or under any law for the time being in force or displayed on the goods or any package containing such goods or displayed on the price list exhibited by him by or under any law for the time being in force or agreed between the parties। आगे है, द गुड्स विच आर हैजार्डियस टू द लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू पब्लिक, तो कंप्लेंट लाई करती है। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू सेफ्टी ऑफ सच गुड्स एज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, वेयर द ट्रेडर knows that
the goods offered are unsafe to public, the service which are hazardous or likely to be hazardous to life and safety of the public when used, and are being offered by a person who provides any service and who knows it to be injurious to life and safety. A claim for product liability action lies against the product manufacturer. अब ये है कि किसके अगेंस्ट लाइबिलिटी जो लाई करती है, वो अगेंस्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में भी। इनके खिलाफ आप वो जो ऊपर मैंने कुछ चीजें बताई उनमें से कोई डिफेक्ट रहता है तो या डेफिशिएंसी रहती है तो आप उसमें ये कंज्यूमर कंप्लेंट आपकी लाई करती है। अब इसमें जो देखने में आया है, जो एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट आती हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या फिर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस या फिर गुड्स की क्वालिटी में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो या क्वालिटी प्रॉपर नहीं हो या अंदर वारंटी खराब हो गई हो और उसको वो रिप्लेस नहीं कर रहा हो या उसकी वारंटी हो तो उसमें कुछ वो डिफेक्ट को क्योर नहीं कर रहा हो। इस तरह की कंप्लेंट ही सबसे ज्यादा आती हैं और यही 3-4 विषय ऐसे हैं जो कॉमन पब्लिक से जुड़े हुए हैं, जिसमें ऐसी पब्लिक जिनको लॉ की ज्यादा नॉलेज नहीं है उन सब से जुड़े हुए मसले यही ज्यादा आते हैं कोर्ट के अंदर। सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 2 कंज्यूमर को डिफाइन करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कंप्लेंट फाइल करने का हकदार हूं या नहीं हूं, मैं कंज्यूमर हूं या नहीं हूं, तो कंज्यूमर का मतलब क्या? अभी हमने ऊपर कंप्लेनेंट देखा था, फिर कंप्लेंट देखा भी, अपन कंज्यूमर देखते हैं। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बायज any goods for a consideration which has been paid or promised or partially paid or partially promised or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goods for consideration paid or promised or partially paid or partially promised or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purposes। बिल्कुल क्लियर है कि अगर तो जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, अपने यहाँ हार्डवेयर की शॉप है, हार्डवेयर के शॉप ओनर ने कुछ नट बोल्ट्स खरीदे, पर्पस था उसको बेचने का, रीसेल करने का, तो कंज्यूमर नहीं हुआ क्योंकि कमर्शियल पर्पस है और रीसेल भी है, तो कंज्यूमर नहीं हुआ। अभी एक और चीज इसमें आती है, जैसे मैंने एक स्टोव लिया और उस इलेक्ट्रिक स्टोव से मैं चाय बना के बेचना चाहता हूं, मगर वो स्टोव डिफेक्टिव निकला, तो क्या मैं कंज्यूमर हूं या नहीं? कंपनियां कहती हैं कि बिकॉज ये पर्सन जो है ये चाय बना के बेच रहा है, दिस इज देयरफॉर दिस इज कमर्शियल पर्पस। मगर इसमें आगे आएगा ऐसा लॉ है कि अगर मैं अपनी आजीविका कमाने के लिए कोई चीज यूटिलाइज कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं, मैं रीसेल नहीं कर रहा उसको, यानी कि मैंने उस इलेक्ट्रिक स्टोव को या इलेक्ट्रिक कंडक्शन प्लेट को या हॉट प्लेट को मैंने उसको रीसेल नहीं किया, मैंने उसको यूज किया अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए, चाय बना के बेचने के लिए। अगर वो खराब हो जाता है तो आई एम ए कंज्यूमर। ये चीजें काफी बाद में समझ में आती हैं एडवोकेट्स को भी, क्योंकि मेरा खुद का मुझे एक्सपीरियंस है, जब मैं इनिशियल फेज में था वकालत के 2-1 साल में, तो ये बात समझ में नहीं आती थी, ऐसा लगता था कि ये कमर्शियल है, क्योंकि चाय बना के बेचूंगा तो कमर्स हो गया, तो कमर्शियल है, बट वो इंक्लूड है। सबसेक्शन का पार्ट 2 है, क्लोज 2 है, हायर्स और अवेल। कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल of any service for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such service other than
the person who hires or avails of service for consideration paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment, when such service are availed of with the approval of first mentioned person but does not include a person who avails such service for any commercial purpose. Example है, for the purpose of this clause, A, the expression commercial purposes does not include use by a person of goods bought and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self-employment. मैं अभी जो थोड़ा समय पहले बताया था, ये उसका एग्जाम्पल दिया है कि कमर्शियल पर्पज से वो बाहर रहेगा. दोबारा देखते हैं. द एक्सप्रेशन कमर्शियल पर्पज डज नॉट इंक्लूड यूज बाय ए पर्सन ऑफ गुड्स बॉट and used by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self employment, वो कंज्यूमर ही माना जाएगा. वो कमर्शियल पर्पस से एक्सक्लूड रहेगा, उसको बाहर निकाला गया. द एक्सप्रेशन बाय एनी गुड एंड हायर और अवेल एनी सर्विसेज इंक्लूड ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन through electronic means or by telephonic or direct selling or multi-level marketing. Consumer dispute, ये अगली definition है subsection 8 of section 2 में. Consumer dispute means a dispute where the person against whom a complaint has been made denies or dispute the allegation complaint in the complaint. मेरे ख्याल इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बिल्कुल प्लेन इंग्लिश है. द कंज्यूमर राइट इंक्लूड द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज व्हिच आर hazardous to life and property. The right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods, product or services as the case may be, so as to protect the consumer against unfair trade practice. ये unfair trade practice बहुत व्यापक और बड़ा एक विशाल ऐसी चीज है, क्योंकि जो कमर्शियल कंपनीज हैं उनमें हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं. वो कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालने का प्रयास करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को ज्यादा क्वांटिटी में सेल कर पाएं, इसलिए कुछ वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज कर लेते हैं. बाद में डिस्प्यूट पड़ता है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है या नहीं है. वो कहेगा कि मैंने तो एडवर्टाइज किया है. तो वो कौन कौन सी चीजें बाद में इसकी डेफिनेशन में देखेंगे. वो पहले से ही ध्यान रहे तो जब केस की ड्राफ्टिंग करते हैं तो उस ड्राफ्टिंग के समय हम इस चीज को याद कर, इसको ध्यान करके और इन सारी चीजों का पालन करके अगर ड्राफ्टिंग करें तो केस लास्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक आपका फेल नहीं हो सकता. जनरली क्या होता है कि हम बिना पढ़े या केवल याददाश्त के आधार पे या सरमाइजेस के बेसिस पे या क्या कहें उसको स्पेकुलेशंस के बेसिस पे कैसा लॉ होगा या जनरल जो लीगल नॉलेज होती है, जुडिशियस माइंड होता है, उसके आधार पे अगर अपन कर देते हैं तो कभी कभी लास्ट में आके उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. इसलिए हमेशा डेफिनेशन को पढ़ के अपनी जितनी भी ड्राफ्टिंग है उसको उस डेफिनेशन के अंदर ही रहे तो केसेस कभी भी लास्ट तक खराब नहीं होते. द राइट, क्योंकि कितने केस ऐसे देखे जाते हैं जिसमें वैसे तो कंज्यूमर के फेवर में बहुत सी चीजें होती हैं मगर टेक्निकली वो कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं. तो अगर लोअर कोर्ट उनको कुछ दे भी देती है कंपनसेशन या क्या बोलते हैं पूर्ति, क्षतिपूर्ति, जो क्षतिपूर्ति, यस थैंक यू. तो क्षतिपूर्ति अगर नीचे की कोर्ट दे भी देती है तो फिर ऊपर वाली कोर्ट में वो टेक्निकल चले जाते हैं. तो सेकंड एडवोकेट से जो अपील फाइल करता है वो टेक्निकल चला जाता है कि इसमें ये नहीं पालन हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. टेक्निकलिटी के बेसिस पे कभी कभी नेशनल कंज्यूमर कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके वो चीजें गड़बड़ हो जाती हैं. तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें. इसलिए मैं आपको डेफिनेशन से पढ़ा रहा हूँ. डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लॉ में खास तौर पे.
द राइट टू बी एश्योर्ड वेन एवर पॉसिबल, ये हम कंज्यूमर राइट की बात कर रहे हैं, द राइट टू बी एश्योर्ड वेन एवर पॉसिबल एक्सेस टू वेराइटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विस एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, द राइट टू बी हर्ड एंड टू बी assured that customers' interest will receive due consideration at appropriate fora, the right to seek redressal against unfair trade practice or restrictive trade practices or unscrupulous, मेरे ना दांत की कुछ प्रॉब्लम है, एक एक्सीडेंट में 10 दांत मेरे टूट गए थे, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इशू रह सकता है। आगे के 10 के 5 दांत ऊपर और 5 दांत नीचे, वो हो गया था एक बार। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, ये अपने कंज्यूमर राइट्स हैं। डिफेक्ट्स क्या होते हैं? डिफेक्ट्स मीन एनी डिफॉल्ट, imperfection or shortcoming in the quality, quantity, potency, purity or standard which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or under any contract express or implied or as is claimed by trader in any manner whatsoever in relation to any goods and product, and expression defective shall construed accordingly. Deficiency means any fault, imperfection, shortcoming, inadequacy in quality, nature and manner of performance which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or has been undertaken to be performed by a person in pursuance of contract or otherwise in relation to any service, and includes any act of negligence, omission or commission by such person which causes loss or injury to consumer and deliberate withholding of relevant information by such person to consumer. मैं एक बात यहाँ थोड़ी मेंशन करना चाहता हूँ। कभी हम लोग अभी सभी लोग प्रिंटर का यूज करते हैं, कंप्यूटर प्रिंटर का, या कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइसेस, कंप्यूटर के अलावा भी स्कैनर हो गया या माउस हो गया या ये आपका वेब कैम हो गया, या ऐसे सो मेनी पेरिफेरल जो डिवाइसेस हैं उसका यूज करते हैं। उसकी एक जो मेरे ध्यान में बारीकी आई, उस केसेस में हमने किसी माना कि एक कैमरा ही परचेज किया और हमारे सिस्टम के साथ वो चला नहीं, या हमने एक प्रिंटर परचेज किया, वो हमारे सिस्टम के साथ चला नहीं, या फिर प्रिंटर के अंदर जो कार्ट्रिज लगती है, इंक जिसमें फिलिंग होती है, हमने बिना ध्यान किए उसको परचेज कर लिया और एचपी वाले में लगाने का प्रयास किया, वो चली नहीं, कंपैटिबल खरीदी थी हमने। अगर एचपी की खरीदी होती तो ठीक थी, कंपैटिबल खरीदी थी, वो उसमें फिट नहीं हुई, तो हम कहते हैं कि दिस इज डेफिशिएंसी इन सर्विस या डिफेक्टिव प्रोडक्ट है। मगर आप ध्यान देंगे तो उसके बॉक्स पे लिखा होता है कि ये डिवाइस, ये कार्ट्रिज किस किस तरह के प्रिंटर नंबर के साथ एडजस्टेबल है, कंपैटिबल है। अगर उस वहां पे कुछ गलत लिखा है और उसको पढ़ के आप परचेज करके ले आए, तो फिर वो उसकी डेफिशिएंसी है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो ट्रेडर है, या जिसने उसकी पैकेजिंग की है, उसकी डेफिशिएंसी है कि उसने उसको मेंशन क्यों नहीं किया, या उसने गलत मेंशन क्यों किया उस प्रोडक्ट पे, तो वो डेफिशिएंसी है। मगर उसने सही सही चीजों को मेंशन किया हुआ है कि ये कार्ट्रिज सो मॉडल के प्रिंटर्स पर चलेगी, और हम इग्नोरेंस के चलते, नेग्लिजेंस के चलते हमने उसको खरीद लिया, हमने लगाया, फिर वो चली नहीं, हमारे प्रिंटर को डिफेक्ट हो गया, हम कोर्ट में चले गए कि जी मैंने ये खरीदा था, ये बेकार थी, मेरे प्रिंटर को उसने डैमेज कर दिया। बाद में क्योंकि जो कार्ट्रिज आपने खरीदी है वो आप एविडेंस के तौर पे कोर्ट पे रखोगे, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो आएगा, उसने बोलेगा साहब मैंने ये ऐसे डिस्प्ले किया हुआ है, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग कंज्यूमर हैज मिस्ड टू रीड all the information available on the package, therefore there is no deficiency on my part, this is the negligence और omission है ध्यान देने में on part of
कंज्यूमर्स, इसलिए क्योंकि मेरी डेफिशिएंसी नहीं है, मैंने तो क्लियरली लिखा हुआ है देयरफॉर नो रिलीफ लाइज, और ऐसे में फिर वो कंप्लेंट है वो डिसमिस होने के चांसेस आते हैं, डिसमिस हो जाती है कि हमने खुद ही ध्यान नहीं किया। डेफिशिएंसी में अभी मैंने एक बताया था, कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे थे सर आप। हाँ, कंपैटिबिलिटी, एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस और omission or commission by such person which causes loss or injury to consumer and deliberate हाँ ये बता दिया था, deliberate withholding the relevant information by such person to consumer। तो इसमें मैंने क्लैरिफाई किया था कि अगर मैन्युफैक्चरर ने सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की है और हमने गलती कर दी तो उसमें मैन्युफैक्चरर पे कोई लायबिलिटी नहीं आती है। अब ये सवाल है कि ये जो कंज्यूमर के जो राइट्स हैं वो कहाँ पे क्लेम करें, कहाँ जाएं, कहाँ पे क्लेम करें, किस तरह की कोर्ट होती है, उनका फॉर्मेशन क्या रहता है इन डेफिनेशंस के आधार पे। तो वो हालांकि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, 40-50 से भी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं, बट वो क्योंकि बहुत सारी के सारी कॉमन मैन के से रिलेटेड नहीं है, और अगर सारी की सारी बतानी शुरू की तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव पास्ड 32 मिनट्स और टाइम भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अब जो डेफिनेशंस है उसमें ई कॉमर्स को भी इंक्लूड कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होगा उसको इंक्लूड किया है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा वो भी क्या है। अब इसमें एक डेफिनेशन है सबसेक्शन 19 में, एस्टेब्लिशमेंट, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान करनी, या मैं आपको ई कॉमर्स की बताता हूँ। ई कॉमर्स मीन्स बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड और सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इज ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर मीन्स ए पर्सन हु प्रोवाइड्स technologies or processes to enable a product seller to engage in advertising or selling goods or services to the consumer and includes any online marketplace or online auction site। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर हो गए। एस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट है, हालांकि कभी शायद किसी ने उसको इतना नोटिस नहीं किया होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशमेंट क्या है? एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स एनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कमीशन एजेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग or any other commercial agency which carries on any business, trade or profession or any work in connection with or incidental or ancillary to any commercial activity, trade or profession or such other class or classes of person including public utility entities in manner as may be prescribed। तो जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें खाली प्लेन दुकानदार या मैन्युफैक्चरर या ऐसा प्लेन नहीं, उसमें ये बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड की हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी की है, कमीशन एजेंट भी किया है, मैन्युफैक्चरिंग तो सभी लोग हम समझते ही हैं, ट्रेडर भी हम सब लोग अपने आप से समझते हैं कि हाँ ये उसमें शामिल है, बट इसमें ये बाकी जो 2-3 बातें बताई वो भी उसमें शामिल हैं। गुड्स मीन एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स फूड as defined in clause J of subsection L of section 3 of Food Safety and Standard Act 2006। यहां मैं आपको एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं, इसमें गुड्स में क्या लिखा है, मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है एंड इंक्लूड्स फूड। अब देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है, इमूवेबल नहीं लिखा हुआ है। कल को आप जमीन खरीदने जाए तो जमीन इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहां पे आपका एक कंज्यूमर एक्ट नहीं लागू होगा। आप गए, आपने बयाना कर लिया कि जी 2 एकड़ लैंड मैंने लेनी है, ये इसका बयाना लो, फिर बाद में पता लगा इसमें कुछ डिस्प्यूट निकल आया था जी, आपने मुझे बताया नहीं था, तो वो कंज्यूमर एक्ट में नहीं आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं आएगा। उसके फिर अलग से चीजें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलेगा या आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट चलेगा, परफॉर्मेंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो उधर चलेगा। बाकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसमें एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज मेंशन किया हुआ है। और हार्म भी एक प्लेन इंग्लिश का वर्ड है, उसमें देख लेते हैं फास्ट। हार्म
in relation to product liability includes damage to any property other than the product itself. ये मैंने जो पहले आपको एग्जांपल दिया था कि हमने कार्ट्रिज खरीदी, वो उसको गलत प्रिंटर में लगा दिया, तो जो जो हार्म है वो प्रोडक्ट को इटसेल्फ तो हुआ, उसने अदर प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर दिया, तो वो हार्म है। बट वो दोनों हार्म समझाने के लिए मैंने बताया है, मगर उस हार्म की वजह से क्या मैन्युफैक्चरर लायबल है या मैन्युफैक्चरर लायबल नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि उसने डिस्प्ले क्या किया था। तो यहाँ पे ये डिमार्केशन जो है वो समझ में आना चाहिए। पर्सनल इंजरी, इलनेस और डेथ, मेंटल अगोनी, ये भी हार्म है। मेंटल अगोनी और इमोशनल डिस्ट्रेस attendant to personal inquiry, injury or illness or damage to property, or any loss of consortium or service or other loss resulting from a harm referred to in subsection 1 और subsection 2 और subsection 3, यानी कि जो मैंने ऊपर 3 बताया था ना, मेंटल अगोनी, पर्सनल इंजरी और इंजरी टू प्रोडक्ट या हार्म टू प्रोडक्ट, वो सब इसमें शामिल है। बट शैल नॉट इंक्लूड any harm caused to a product itself or any damage to property on account of breach of warranty, यानी कि वारंटी में लिखा था कि आप ये नहीं करेंगे और आपने उस वारंटी को ब्रीच कर दिया, तो वो हार्म नहीं माना जाएगा। ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी कंडीशन और एनी कमर्शियल और इकोनॉमिक लॉस इंक्लूडिंग any direct, incidental और consequential loss related thereto। अगर आपने वारंटी में लिखा था ये करना है, ये नहीं करना, डूएबल या अवॉइड दिस थिंग, और आपने उसने डिक्लेयर किया था कि डोंट डू दिस थिंग या अवॉइड दिस थिंग, फिर भी आपने कर डाला, तो वो ब्रीच ऑफ वारंटी आपने कर दिया, तो वो उसमें हार्म में इंक्लूड नहीं। इंजुरी मीन्स एनी हार्म whatever illegally caused to any person or in body, mind or property। मैन्युफैक्चरर जो क्लेम है, मीडिएशन का भी जो सिंपल इंग्लिश में मीनिंग है वो यहाँ पे मीनिंग है कि कोई भी व्यक्ति जो डिस्प्यूट को मीडिएट करता है, प्रोसेस जो उसका है वो मीडिएशन है, मीडिएट करने वाला मीडिएटर है। अभी इसमें जिन लोगों ने कभी कोई कंज्यूमर केस किया होगा या कोई ऑर्डर पढ़ा होगा, उनको समझ आया होगा, एक तो प्रेसिडेंट, नीचे साइन होते हैं प्रेसिडेंट, मेंबर, तो मेंबर कौन है, या जो कमीशन बनाया गया आपको रिलीफ देने के लिए, आपके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो कमीशन बनाए गए हैं, जिनको पहले पुराने वाले एक्ट में बोलते थे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम बोलते थे, अब नए एक्ट में उसको डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल कंज्यूमर फोरम ऐसा करके नाम दिया। स्टेट तो उसमें जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, प्रेसिडेंट को भी मेंबर माना है और मेंबर को भी मेंबर ही माना है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, चालाकी से दिया हुआ, इन रिलेशन टू एनी प्रोडक्ट और सर्विस मीन्स एन एडवर्टाइजमेंट विच falsely described any product or service or gives a false guarantee to or is likely to mislead the consumer as to the nature, substance, quality or quantity of such product or services, conveys an express or implied representation which, if made by manufacturer or seller or service provider thereof, would constitute an unfair trade practice or deliberately conceals important information। ये मिसलीडिंग है। जैसे कई बार अपनी न्यूज में देखते हैं वो आधा सच बताते हैं, या अपने व्हाट्सएप पे बहुत से मैसेजेस आते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड, उसमें हाफ ट्रूथ बताते हैं, केवल ऐसा पार्ट, ऐसा पोर्शन को सामने लाते हैं जिससे कि मानसिक द्वेष पैदा हो, और मगर वो कंज्यूमर एक्ट में नहीं है, वो केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो और बाकी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ, वो छुपा ली जाती है। तो अगर इस तरह की कोई कमर्शियल एक्टिविटीज में इस तरह की है कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है या कंसीलमेंट है डेलिबरेटली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का, तो वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में आता है। अब पर्सन
व्यक्ति है, उसकी भी डेफिनेशन है कि व्यक्ति कौन है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से पर्सन में किस किस को इंक्लूड किया गया है। एन इंडिविजुअल, ए फर्म विच वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, ए फर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी पर्सन के रूप में ही है, ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस वेदर रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट और नॉट, एनी कॉर्पोरेशन, कंपनी or a body of individuals whether incorporated or not, any artificial judicial person not falling within any of preceding sub clauses, जो ऊपर वाले सब क्लॉजेस थे उसमें अगर शामिल नहीं है फिर भी आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो भी पर्सन में ही शामिल है। पर्सन में एक व्यक्ति नहीं, फर्म भी चाहे रजिस्टर्ड हो नहीं हो, अनडिवाइडेड इंटू फैमिली भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, कंपनी भी, वो सारी की सारी पर्सन की तरह से ही इस एक्ट में ट्रीट होती हैं। प्रोडक्ट का मीनिंग हम समझते हैं, प्रोडक्ट में सर्विसेज भी शामिल हैं, प्रोडक्ट सेलर भी हम सब समझते हैं, सर्विस प्रोवाइड जिसने कुछ नहीं बेचा सर्विस दी, सर्विस प्रोवाइडर है। अब आते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, सबसेक्शन 41 है सेक्शन 2 का डेफिनेशन में। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मींस ए ट्रेड प्रैक्टिस which tends to bring about manipulation of prices or its conditions of delivery or to affect flow of supplies in the market relating to goods or services in such a manner as to impose on the consumers unjustified cost or restrictions and shall include delay beyond the period agreed to by a trader in supply of such goods or in providing the services which has led or is likely to lead to rise in price। हमने कई बार इतनी समझदारी से ट्रेडर काम करता है कि आपने जैसे हमने कोई प्रोडक्ट समझें कि गेहूं ही या कुछ दूसरी प्रोडक्ट हमने खरीदने के लिए बात कर ली, उसने कहा कि जी 15 दिन में आपको पहुंचा दूंगा आपके पास, आपने पार्ट पेमेंट कर दी, क्योंकि पार्ट पेमेंट भी शामिल है ना, ऊपर डेफिनेशन में हमने देखा, आपने पार्ट पेमेंट कर दी, फिर उसको लगा कि यार रेट जाएंगे, आगे जाएंगे, कोई ऐसी चीज आ गई कि रेट बढ़ने वाले हैं, उसने सप्लाई को डिले कर दिया, और जब रेट बढ़ गए तो उसने कहा कि साहब अब अवेलेबल है, एक महीने बाद बोला साहब अवेलेबल है मगर अब इसके ये प्राइस लूंगा। तो दैट इज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए उसको कुछ एडवांस दे दिया था, और अब ये इसमें वो पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो बहुत यूजफुल आएगी कि आपने एक्चुअल में प्रोडक्ट खरीदा नहीं था मगर एग्रीड टू बाय तो हो गए थे ना, तो वो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में आएगा कि आपने 15 दिन का नाम लिया, अगर 16-17 दिन भी हुए सेम प्राइस पे दे दिया तो ठीक है, अगर आपने डिले को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई मेरी वजह से नहीं, ट्रक में ये हो गया था या कुछ जाम लग गया था या व्हाटएवर, कुछ आपने ऐसा बोल दिया तो वो तो चलता है उतना तो, मगर आपने कहा कि एक महीने बाद के साहब अब इसका प्राइस 5 रुपए नहीं अब 6 रुपए है, 6 रुपए में दूंगा आपको मैं, तो 1 रुपए का जो डिफरेंस है वो और मुझे दो, तो दैट इज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। Yes, any trade practice which requires a consumer to buy, hire or avail of any goods or, as the case may be, services as condition precedent for buying, hiring or availing of other goods or services। सर्विस का मीनिंग भी हम समझते हैं सारे, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, सबसेक्शन 46 ऑफ सेक्शन 2 डेफिनेशंस में अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर ऑन वन हैंड एंड ए कंज्यूमर ऑन अदर हैंड, हैविंग सच टर्म्स which cause significant change in right of such consumer, including the following, namely requiring manifestly excessive security deposit to be given by a consumer for the performance of contractual obligation,
or impose breach of contract thereof which is wholly disproportionate to the loss occurred due to such breach to other party to the contract। ये भी जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट को बाय करने का या सेल करने का, मोबाइल प्रॉपर्टी को हमने पार्ट पेमेंट दे दी, अगर उसको वो प्रॉपर्टी की कीमत 8 रुपए थी या 10 रुपए थी, 10 रुपए तक का लॉस हो तब तो उतने तक की भरपाई करने का तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ठीक कॉन्ट्रैक्ट है। परंतु लॉस आपको 10 रुपए हो रहा है और आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि अगर ये लॉस हुआ, ये डिले हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो मैं इससे 1000 रुपए लूंगा, तो दैट इज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि अगर कोई चीज आपको चाहिए तो आप रिसेसिव पोजीशन में है और बेचने वाला अगर डोमिनेंट पोजीशन पे है, सप्लाई कम है और बायर ज्यादा है, तो डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाएगा सेलर, तो अपनी उस डोमिनेंसी का फायदा उठाते हुए बोले कि तुरके लेना है तो ले, लॉस हुआ मुझे तो मैं तेरे से 1000 रुपए ले लूंगा 10 रुपए के, तो दैट इज अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट। Refusing to accept early repayment of debt on payment of applicable penalty। ये अगर डेफर्ड पेमेंट में आपने कोई चीज ली थी और टर्म जो थी वो 6 महीने की में पे करने की थी, आपके पास 4 महीने में पैसे अवेलेबल हो गए, उसमें आपने कहा कि भाई मेरी पूरी पेमेंट जो है मैं 4 महीने में तेरे को पूरी दे रहा हूँ, तो वो डिनाई नहीं कर सकता है। हाँ, अगर उसमें थोड़ा बहुत पेनल्टी का कुछ क्लॉज हो तो वो ले सकता है। जैसे बैंक जनरली आपने देखा होगा, आप कोई व्हीकल लेते हैं, अगर आप अर्ली पेमेंट करना चाहे तो बैंक बोलता है कि मैं आपसे 2% फालतू लूंगा जी, तो वो प्रोपोर्शनेट जो थोड़ा एप्लीकेबल पेनल्टी है वो तो चलता है, लॉ में उसकी एडमिसिबिलिटी है, मगर उससे ज्यादा उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं है। और फ्लैटली डिनाई नहीं कर सकते कि 6 महीने में मैंने देना था, मैं 4 महीने में दे रहा हूं, आप अपने ब्याज के चक्कर में कि भी मुझे 6 महीने का ब्याज आएगा और आप उसको डिनाई कर दो कि मैं 4 महीने में लूंगा नहीं, तो that contract is unfair contract। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं, entitling a party to the contract to terminate such contract unilaterally without reasonable cause, or party who is a consumer without his consent, or imposing on the consumer any unreasonable charge, obligation or condition which put such consumer to disadvantage। अभी अपन ने ऊपर कई बार बात नहीं की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट अपना है, कंज्यूमर जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसमें इसका मेजर रोल होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का, और डेफिशिएंसी, डिफेक्टिव, इन 4-5 चीजों का बहुत बड़ा रोल रहता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है? मींस ए ट्रेड प्रैक्टिस विच फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग द सेल और सेल, यूज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स or for the provision of any service adopts any unfair method or unfair or deceptive practice, including any of the following practices, namely making any statement which orally or in writing or by visible representation, including by means of electronic record, which falsely represent that the goods are of a particular standard, quality, quantity, grade, composition, style or method. Falsely represents that the services are of a particular standard, quality or grade. Falsely represents any rebuilt, second-hand, renovated, reconditioned or old goods as new goods। यानी कि आपने ये आज अब जो ना बड़ा हो रहा है, इसलिए मेरे को भी ध्यान आया कि हम जब ये ई कॉमर्स करते हैं, आपने अमेजोन से कोई सामान मंगवाया या फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाया, तो कभी कभी क्या होता है कि उसमें डिफेक्टिव हुआ, आपने उसको रिटर्न कर दिया क्योंकि उनकी रिटर्न पॉलिसी है, आपने रिटर्न कर दिया। अब अमेजोन जो है या फ्लिपकार्ट या इस तरह की जो दूसरी साइट्स हैं, वो मीडिया है बेसिकली, वो कंज्यूमर और सेलर के बीच में एक माध्यम है। तो जब सेलर के पास वो चीज वापस चली गई, आपने बोला मुझे नहीं चाहिए, इसमें सो डिफेक्ट है या ये टूटी निकली है, बेंड था, इसमें मुड़ी हुई थी या प्रॉपर काम फंक्शन नहीं कर रही है, तो आपने वापस कर दिया। तो मैन्युफैक्चरर या सेलर जो होता है वो अपनी लॉस को सेव करने के लिए उस डिफेक्ट को रिमूव करके फिर वापस
दोबारा से भेज देता है। तो ऐसे में अगर उसने ऐसी रीबिल्ट या सेकेंड हैंड या रिनोवेटेड या रिकंडीशनड चीज को ऐसा बोल के कि ये नई है अगर आपको बेच दिया है, तो दैट इज, वो आपका आता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर। ये अभी बहुत हो रहा है, बच्चे बड़ी शिकायत करते हैं कि ये भेजा था और ये तो फिर दोबारा से खराब निकल आया, तो वो आप उसमें अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। Represents that the goods or services have sponsorship, approval, performance characteristics, accessories, uses or benefits which such goods or services do not have. Represents that the seller or the supplier has the sponsorship or approval or affiliation which such seller or supplier does not have. अभी कभी वो बोल देते हैं ना, मेरे पास एजेंसी है जी फलाने की, या बोल दिया कि मेरा माल तो HCL वाला भी लेता है, मेरा माल तो उसको भी जाता है, या मेरी सप्लाई तो HDFC बैंक में है, सो एंड सो में, कुछ भी उल्टा सीधा बोल के मिस रिप्रेजेंटेशन करके आपने माल बेच दिया, तो वो भी इस डेफिनेशन के अंदर आता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है। मेकिंग ए फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और द यूजफुलनेस ऑफ any goods or services gives to the public any warranty or guarantee of performance, efficacy or length of life of product or of any goods that is not based on an adequate or proper test thereof, provided that where a defense is raised to the effect that such warranty or guarantee is based on adequate or proper test, the burden of proof of such defense shall lie on the person raising such defense. ये वैसे बहुत कॉमन है क्योंकि लॉ बहुत सीधा है, लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं इसमें, हालांकि उन्होंने उसमें लिखा है डेफिनेशंस के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, नहीं करे तो भी ऐसा ही है, क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी डिफेंस को रेज करता है, असर्ट जो करता है, किसी भी चीज को असर्ट जो करता है, उसके प्रूफ की लायबिलिटी उसी की होती है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ उसी पे होता है। जैसे मैंने कहा कि ये आदमी चोर है, अब ये चोर है तो मेरी जिम्मेदारी है मैं प्रूव करूं कि इतने बजे इतने समय पे फलाने के घर से फलानी आइटम इसने चुराई, खाली ऐसा बोल देना चोर है, ये बार्ड एलिगेशन है। फिर ऐसे में क्या होता है, आप पे मान आने का दावा आ जाता है। ये मैंने एक वैसे एग्जांपल दे दिया। तो ये सेटल्ड लॉ है कि जो व्यक्ति किसी चीज को असर्ट करता है, कहता है, डिफेंस लेता है, या अपना जो क्लेम है उसको बेस करता है किसी भी चीज पे, तो उसके प्रूफ का ऑनर्स जो है उसी व्यक्ति पे होता है। जिसको आपने कहा कि ये चोर है, उसको ऑनर्स नहीं है कि वो प्रूव करे कि मैं चोर नहीं हूं, जिसने एलिगेशन लगाया उस पे ही है। ये makes to the public a representation in a form that purports to be a warranty or guarantee of a product or of any goods or services, or a promise to replace, maintain, repair an article or any part thereof, or to repeat or continue a service until it has achieved a specified result in such purported warranties। ये सब चीजें हैं। मुझे लगता है कि आपका समय कितना, 1 घंटा था ना? 1 घंटा था सर। इसमें हम ये चाहते हैं कि जो ब्रीफ में एक बार राइट्स के बारे में, यस मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ जी। जब ये जो मैंने आपको ऊपर चीजें बताई, इनमें से अगर आपके साथ कुछ हुआ है और आप उसमें फॉल करते हैं, जो चीजें हमने ऊपर बताई हैं, तो आप सबसे पहले आप सेलर को और मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स को एक लीगल नोटिस इशू करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो लीगल नोटिस किसी एडवोकेट्स के थ्रू ही इशू हो, आप खुद भी उस नोटिस को इशू कर सकते हैं, और उसके प्रॉपर एड्रेस पे, जो आपको नॉन एड्रेस है, जो भी उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने बिल पे मेंशन किया हुआ है, उसमें आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से एक भेजेंगे कि इस प्रोडक्ट में सो एंड सो कमियां हैं, या सर्विसेज आपने ये प्रॉमिस की थी और उसमें ये डेफिशिएंसी हैं, डिफेक्ट्स हैं, और आप इसको क्योर करें। आप उसको क्योर करने का समय देंगे। अगर वो उस नोटिस के बाद भी
उस डिफेक्ट को क्योर नहीं करता या उस डेफिशिएंसी को फुलफिल नहीं करता, ठीक नहीं करता, देन आपकी जो कंप्लेंट है वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में लाई करेगी। और अगर आपको वहां लगता है फिर आपको डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जिस समय आप कंप्लेंट डालते हैं उसी समय जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास हैं, जैसे परचेज बिल हो गया, या आपके पास आपके पास कोई वारंटी या गारंटी कार्ड है वो उसकी वो हो गया, नहीं तो जो प्रोडक्ट इटसेल्फ है जो डेफिशिएंट है वो हो गया, या फिर आपके बीच कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सर्विसेज को लेके तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी हो गई, या ऐसे कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं वो उसके साथ लगा के और तब आपकी कंप्लेंट फाइल होती है। अगर आपके पोजीशन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और डॉक्यूमेंट वो जो सेलर है उसके पोजीशन में है, किसी भी कारण से उसने कहा दिखाना मेरे को, मैं कंपनी से मेरे को बिल दे दो, मैं कंपनी से बात करता हूँ, वो उससे फिर मंगवा के दूंगा, फिर 1-2 महीने बाद बोले भाई वो बिल भी नहीं है, माल भी नहीं है। तो अगर आपके पोजीशन में नहीं है तो फिर आप उसमें कंप्लेंट में मेंशन कर देंगे कि वो किसके पोजीशन में है और कैसे उसके पोजीशन में गया, जो आपके पोजीशन में होना चाहिए था। तो वो ऐसी चीजें, बिल आपसे फट गया मगर डेट आपको ध्यान थी, आपने बोला इसकी बिल बुक मंगवा लो साहब, इसकी बिल बुक में उसकी बिल की कॉपी होगी। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपके पोजीशन में है वो आप अपनी कंप्लेंट के साथ लीगल नोटिस जो आपने भेजा था खुद से एडवोकेट के थ्रू उसको लगा के आप वो जो रिक्विजिट फी है वो आप लगा के और फाइल करते हैं। उसके बाद आपको एविडेंस का, विटनेस का मौका दिया जाता है। अगर आपके पास कोई ओरल विटनेस है, गवाह अपन जैसे बोलते हैं, अगर आपके पास जबानी वाला कोई गवाह है, आपके साथ सामान खरीदने के लिए साथ गया था, तो वो बोलेगा कि साहब इसने मेरे सामने ऐसा बोला था, और आप खुद भी अपने बाय वे ऑफ एफिडेविट देते हैं, जो आपका विटनेस ओरल विटनेस है उसका भी आप गवाह का भी एफिडेविट देते हैं। ऐसे करके आपको गवाही का मौका रहता है। और अगर आप उसमें, क्योंकि आप में स्टूडेंट भी हैं, कौन आगे चल के सेलर ऑफ गुड्स बनेगा, कौन आगे चल के मैन्युफैक्चरर बनेगा, ये अभी नहीं पता है। तो ऐसे में जो दोनों के राइट बता देता हूँ, जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेलर है या जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है वो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट है। वो क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब जिसको अपन साधारण भाषा में जिरह बोल देते हैं। तो जो एफिडेविट बाय वे ऑफ एविडेंस दिया गया है या इन सपोर्ट ऑफ कंप्लेंट दिया गया है, उस एफिडेविट में जो बातें लिखी हैं उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, अपने सवाल पूछते हैं, और जो एफिडेविट देने वाला है उसको उसके सवालों के जवाब देने होते हैं। तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं जिससे कि ट्रुथ बाहर निकले कि देखो साहब ये आप झूठ बोल रहे हैं, आपने ऐसा नहीं कहा था, आपने ये बोला तो मैंने उसके बाद आपको ऐसा बोला था, तो ये मेरी गलती नहीं है, ये आपने समझने में गलती है। तो इस तरह से आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मिलता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जिसके खिलाफ कंप्लेंट गई है, अपोजिट पार्टी अपन बोल सकते हैं, तो वो अपोजिट पार्टी को भी अपने एविडेंस रखने का मौका दिया जाता है। जनरली ऐसा देखा गया है केसेस में कि जो रीसेलर है या सेलर जो है या बीच में कमीशन एजेंट या इस तरह के जो है उस पे लायबिलिटी नहीं डाली जाती है, क्योंकि वो कहता है कि एज आई रिसीव्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैंने आगे सेल कर दिया, मैंने उसमें ना कुछ ऐड किया ना कुछ उसमें से घटाया, जैसी पैकिंग आई थी जो कुछ था सील्ड था मैंने उसको दे दिया, तो मेरी लायबिलिटी कहाँ है? तो मैन्युफैक्चरर पे जानी चाहिए। मैन्युफैक्चरर के पास भी कुछ डिफेंस, सेट ऑफ डिफेंस रहता है कि इसने गुड्स को ऐसे चलाया होगा, ऐसे चलाया होगा, ये सब रहते हैं, तो वो अपने डिफेंस लेते हैं। उसके बाद दोनों तरफ की एविडेंसेस को कंक्लूड करने के बाद, आर्गुमेंट दोनों पार्टियों के होने के बाद, और वो जजमेंट डिलीवर होता है। उस जजमेंट में इसमें एक ये जो, क्योंकि कंप्लेंट है, जजमेंट डिलीवर हो गया, अब खाली जजमेंट डिलीवर होने के बावजूद जो सेलर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो उस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं करता। अब बंदा बैठा है बेंगलोर में, आप बैठे हो दिल्ली में, हरियाणा में, और जो जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ वो है बेंगलोर के अंदर, मैन्युफैक्चरर था चेन्नई में या कहीं दूर है, नहीं करता कंप्लायंस, ऑर्डर आपको मिल गया तो क्या करें? तो क्योंकि ये कंप्लेंट है इसलिए ये उसमें अरेस्ट तक उसका पॉसिबल है। जो कंप्लायंस नहीं करता उसका अरेस्ट तक पॉसिबल है इसके अंदर, इसके एग्जीक्यूशन में।
इस तरह के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने में। मगर इसमें ध्यान करना पड़ेगा कि यदि जो अपोजिट पार्टी है वो अपोजिट पार्टी उस ऑर्डर से, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर से अगर वो पार्टी संतुष्ट नहीं है और वो चाहती है कि इसके अंदर अपीलेबल पॉइंट्स हैं, अपीलेबल मेरिट्स हैं, तो वो अपील कर सकती है स्टेट कंज्यूमर कमीशन के अंदर। और अगर वहां से भी कोई, दोनों में से किसी भी एक पार्टी के फेवर में जजमेंट आएगा, एक के अगेंस्ट में आएगा, वहां से वो नेशनल कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर लगता है कि नेशनल कंज्यूमर कमीशन में भी लॉ का वायलेंस हुआ है, लीगल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया, देन ओनली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए आपको कानून में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई राइट ऐसा लिखित में नहीं देगा। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपीलेट साइड में तभी जाएंगे, यदि आपकी कंज्यूमर कंप्लेंट सीधी नेशनल फॉरम में लाई करती है तो आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपको अपील का मौका रहेगा। परंतु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप चले हैं तो आप वहां पे एक SLP डालेंगे कि इस केस में सभी कोर्टों ने ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल लॉ का पालन कराने के लिए है, फैक्ट देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन नहीं हो तो, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन होता है, वहां तो सुप्रीम कोर्ट फैक्ट्स भी देखता है और एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ भी देखता है। परंतु यदि अपीलेट साइड से गुजरते हुए आए हैं और आपका अपील का राइट नेशनल कंज्यूमर कमीशन में खत्म हो गया, या क्रिमिनल केसेस की बात करेंगे तो आपका राइट हाई कोर्ट तक खत्म हो गया, या सिविल केसेस की भी बात करेंगे तो आपका राइट हाई कोर्ट तक खत्म हो गया, तो आप केवल स्पेशल लीव पिटीशन डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल परमिशन मांगते हैं, लीव मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं कि मुझे इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो जो नीचे की कोर्ट ने देख दिए वो हैं, तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर कहीं पे इन्वॉल्व है और आपके जो अपील के राइट थे वो सब जगह कंज्यूम हो चुके हैं, पूरे फुलफिल हो चुके हैं, तो आप SLP सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं कंज्यूमर केसेस में भी कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं हुआ है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें एग्जिस्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी उन सारे केसेस को सुनता है और डिसाइड करता है। और ऐसे ही करके इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं वो लगभग सभी कमीशन, जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं या कमीशंस हैं या फॉरम्स हैं या ऐसे भी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल जितनी भी बॉडीज हैं, उन सब पे एप्लीकेबल होता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील का राइट नहीं हो। तो मुझे लगता है कि 1 घंटा 3 मिनट हो गए हैं जी। जाने को तो कितना भी आगे चले जाओ, मगर हर चीज की एक सीमा तो है ही, मेरे को लगता है। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से डिस्कस किया सर ये, और इसके फंडामेंटल्स हम सबको बताए। सर इस वेबिनार में 78 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया और आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, definitions, and you have discussed or elaborated what is the definition of the goods and services. After that, you have covered the difference between the commercialization and livelihood of an individual or a consumer. After that, you have discussed how to hire or avail the facility of the services from one to another. एक कंपैटिबिलिटी का एग्जांपल आपने दिया सर कि जब हम हार्डवेयर वगैरह लेते हैं तो उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन फिर भी यदि हम उसको प्रॉपरली मैनेज या अरेंज नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वो चीज़ें भी आपने बताई। आगे आपने एस्टेब्लिशमेंट को डिसाइड किया, डिफाइन भी किया उसको, और एक बात जो सबके जहन में रही होगी और समझ में भी आती होगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी को ही कवर करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर नहीं करता है। उसके अलावा सर आपने बताया कि यदि कहीं पर भी इंजरी हो जाती है, मेंटल एगनी है या पर्सनल इंजरी हो जाती है, या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमने कहीं लगाया तो उसने दूसरे इक्विपमेंट को खराब कर दिया, उसका भी हम क्लेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कर सकते हैं। इसके अलावा सर आपने आगे चलते हुए
बताया कि हमारा जो पर्सन है यानी व्यक्ति, मैं किसको मानूं एज एन इंडिविजुअल, उसमें फर्म भी शामिल है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी शामिल है, सोसाइटी है चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, डजंट मैटर, बट दे आर बीइंग कवर्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, and then association, then corporation or the artificial person like which are registered or not, but all have been covered under this the category of the individual or the person. And after that you have elaborated sir unfair contract कि मैं यदि मान लीजिए कोई काम करता हूँ बीइंग सेलर या बीइंग कंज्यूमर, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं, तो उनको ये शायद आज हम सबको ये क्लियर हो गया होगा कि हम अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की एडमिसिबिलिटी के बारे में सोचें और देखें और ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं वो देखें, फेयर और अनफेयर के बीच में हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इसके अलावा सर आपने एग्जांपल दिया यहाँ पर अमेजन और फ्लिपकार्ट से संबंधित, उसमें एक चीज क्लियर हो गई कि ये कंपनीज हैं जो मान लीजिए रीबिल्ड या रीइनोवेट या रिफ्रेश करके कोई प्रोडक्ट यदि हमारे पास नया मान करके उसको भेजती हैं तो ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कवर होता है। उसके बाद लीगल नोटिस यदि आपने देना है एज ए कंज्यूमर तो उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और उसके साथ ये आपको मेंशन करना होगा कि डॉक्यूमेंट आपके पोजीशन में है या सेलर के पोजीशन में है। यदि उसके पोजीशन में है तो आपको रीजन भी देना होगा कि क्यों पोजीशन में है। उसके बाद सर आपने इन चीजों को कवर करते हुए ये बताया कि क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, आर्गुमेंट जजमेंट आती है, जजमेंट का यदि कंप्लायंस नहीं हो पाता है तो अरेस्ट वारंट तक के भी इसमें आगे आप जा सकते हैं या अरेस्ट भी हो सकता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से स्टेट होते हुए और नेशनल फॉर्म तक हम जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपील करनी है तो अपील सेलर भी कर सकता है, कंज्यूमर के कहीं यदि मान लीजिए राइट्स ब्रीच होते हैं तो वो भी कर सकता है। उसके बाद जो भी ऑनरेबल कोर्ट होगा वो डिसीजन देगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशल लीव पिटीशन SLP as you have utilized this word. After that we can see where the consumer is. कंज्यूमर के पास बहुत सारे राइट हैं, चाहे वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में यदि कोई चीज उसको लगता है कि ये मेरे साथ गलत हुआ है तो वो उसके लिए अपनी राइट्स बचा सकता है। अब इसमें सर मैं कुछ या ऑडियंस के लिए क्वेश्चन हो, मैं एक 5 मिनट का और टाइम लूंगा आपसे। Am I audible to you, sir? Yes, yes. Okay. The first question is, sir, nowadays the Amul butter advertisement you are seeing, being a teacher of commerce and student of marketing management, I am asking a question regarding the misleading advertisement. Misleading? All Advertisement. Advertising, yeah. अमूल ब्रेड भी क्रिएट करना शुरू कर दिया, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अमूल ने बटर के साथ, लेकिन अमूल बटर के पैकेट के ऊपर ब्रेड की एडवर्टीजमेंट या अमूल ब्रेड के ऊपर अमूल बटर की एडवर्टीजमेंट दी जाती है। क्या हम इसको मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में या कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स में कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं, एडवर्टीजमेंट को नहीं कर सकते क्योंकि अपनी ट्रेन्स में भी एडवर्टीजमेंट होते हैं। फिर एक प्रोडक्ट पे दूसरे प्रोडक्ट का अगर एडवर्टीजमेंट है तो वो कुछ कंसीलमेंट या कुछ वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में नहीं आता है। ऐड करने का तो राइट सभी को रहता है। ओके, इट इज जस्ट मार्केटिंग। हाँ, मार्केटिंग है वो उनकी अपनी। एनी ऑफ द ऑडियंस इफ यू आर विलिंग टू आस्क द क्वेश्चन, even after if you have the question you can give in the chat box or you can send to this. Hello. Yes, you can leave the question if you have a question, or later on if you have any question you can text to Surendra ji and he will in turn forward it to me, so I will answer the question. Another candidate who is willing to speak. Hello. Yeah, Jaswinder Sidhu ji. हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर मैं
क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसे नाप तो एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और वो एडवर्टाइजमेंट में जो फैक्ट्स हैं वो मिसलीडिंग फैक्ट्स देते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट किसी और कंपनी की करते हैं। तो इस केस में जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं तो नापतोल पे केस दर्ज किया जाएगा या फिर कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा? आप कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करेंगे जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। सर एडवर्टाइजमेंट तो जैसे नापतोल वाले एक प्रोडक्ट को कहते हैं कि यू हैव टू अप्लाई इट 4 to 5 मिनट, 4-5 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन कंपनी नहीं। के प्रोडक्ट पे, हाँ, कंपनी का जो प्रोडक्ट है सर उसकी पैकिंग है उस पे लिखा हुआ 10 to 15 मिनट्स। नापतोल वाले ही मिस एडवर्टाइज तो नापतोल वाले ही कर रहे हैं ना सर, कि कंपनी प्रोडक्ट तो कह रहा है कि 10 to 15 मिनट्स आप अप्लाई करो रिजल्ट आएंगे। देखो जिस आपको प्रॉमिस किया है, अगर नापतोल ने, एक्चुअली आपका जो ऑडियो क्लियरिटी नहीं है, ऑडियो में मैं करता हूं सर क्वेश्चन, बीच में क्रैक हो जाता है, वॉइस क्रैक हो रहा है। आई गॉट द क्वेश्चन सर। डॉक्टर जसविंदर जी मैं बोल रहा हूं सर को, इसमें क्वेश्चन ये है सर क्लियर कि नापतोल, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट हम ले लेते हैं सोना बेल्ट। सोना बेल्ट का जब प्रोडक्ट आता है उसकी पैकेजिंग के ऊपर लिखा होता है यदि आप इसके इफेक्ट देखना चाहते हैं तो 15 से 20 मिनट इसको प्रयोग करें, उसके बाद इसके इफेक्ट देखेंगे। लेकिन जो एडवर्टाइजर है नापतोल, वो एडवर्टाइज करता है टेलीविजन के ऊपर कि इसका इफेक्ट आप 4 से 5 मिनट या 5 से 10 मिनट लगाने के बाद देख सकते हैं। द क्वेश्चन इज दैट why the Naptol is claiming 10 to 15 minutes, however the exact product company or the producer is claiming 15 to 20 minutes. तो complaint lie against the Naptol because Naptol is misleading you. Naptol is giving incorrect information or he is hiding the correct information. Therefore, complaint lies against Naptol, not the manufacturer. Manufacturer has clearly mentioned a time spent for the results. डॉक्टर जसविंदर जी आपके पास क्वेरी का? थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। आपने बड़े ही साधारण शब्दों में सारी चीजें बताई और समझाई। हम आपसे लगातार इसी तरह संपर्क में रहेंगे और सभी ऑडियंस का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस मुहिम में जुड़े और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जाना। हेलो सर। यस, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि ऑलमोस्ट हम पैकिंग की जो चीजें खरीदते हैं तो उन पर जो रेट है, कई बार तो हम जो उसी पे खरीदते हैं, कई बार जो पैकिंग कम पे भी खरीदते हैं, तो सर ऐसा क्यों होता है? क्लैरिफाई करेंगे सुरेंद्र जी? Yes, sir. Yes, sir. Question is that on the packet the price is given ₹100, but the seller is selling it on the packet price ₹100 or at the rate of ₹90. Okay. Why this is the difference between these two prices? ठीक है लक्ष्मी सुरेलिया जी, इसमें Yes, अगर आप उसको पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें लिखा होता है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य अधिकतम लिखा होता है। तो मैक्सिमम उस अमाउंट, उस प्रोडक्ट को आप 100 रुपए तक बेच सकते हैं, मगर मिनिमम की कोई लिखा नहीं है कि मिनिमम कितने में बेचोगे। तो मैक्सिमम 100 में बेच सकते हो आप, चाहे तो 95 में बेचो, चाहे तो 90 में बेचो, 80 में बेचो, फ्री में दे दो बेशक, बट मैक्सिमम इज डिक्लेयर्ड, मिनिमम इज नॉट डिक्लेयर्ड। ओके सर, आपको क्लियर हो गया ना पॉइंट्स? यस सर, हो गया। Okay, MRP is given, maximum retail price is given as stated by sir. कि maximum की लिमिट है, मिनिमम की नहीं है। Okay, Any more sir, thank query from anyone? Okay sir. जी सर नमस्कार। रजनीश, करण जी। yes please speak. हेलो। Yeah. हाँ सत्यानंद जी। हाँ जी, देवेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते। एक क्वेश्चन है जी मेरा भी। बताए। जैसे हरियाणा में हम यदि बात करें जी, जो बस स्टैंड होते हैं जितने, जैसे हर एक जिले में बस स्टैंड है जी। अब उसमें हम जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जी, मान लीजिए कोई बस बिस्कुट भी लगा दिया 10 रुपए का है, तो वो प्रोडक्ट
हमें मिलता है 12 रुपए में, या पानी की बोतल ही ले लीजिए या बिस्किट ले लीजिए, तो उसका जो प्राइस एमआरपी होता है उससे एक्सीड वो सेल करते हैं। इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती, इसका क्या समाधान होता है? इस पे कार्रवाई कोई करेगा तो जरूर होती है, मगर कार्रवाई हम करते नहीं है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि किसी ना किसी को तो कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। कोई कंप्लेंट फाइल करेगा तो उस पर कुछ कार्रवाई होगी। अब एक तो वो बिल नहीं पे करते कभी भी उस प्रोडक्ट का, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहां पे आ जाती है कि बिल पे नहीं हो रखा है। अब मगर आजकल जो जैसे मोबाइल है, आपने वीडियो बना ली या आपके साथ कोई गया है, ऑरल विटनेस हो गया, वो आई विटनेस हो गया कि इसने मेरे देखा है, और आजकल तो कैमरे ऐसे चल गए हैं कि कहीं पे भी किसी की भी वीडियो बना के और वो एक एविडेंस क्रिएट हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति उन पे कंप्लेंट करेगा तो जरूर उसमें कार्रवाई होती है। It means to say we must file the complaint first, and then we can expect that any kind of the decision will be done by the concerned firm, that may be at the district level or the state level or the national level. जी Okay, sir. Thank you. सुरेंद्र जी, मेरा एक आपसे आग्रह है कि एक ना, जैसे चाइना से बहुत सारा माल भारत में आता है और भारत की इकोनॉमी को खराब करता है जी। तो एक केस मैंने किया था, भारत मतलब इंडियन कंपनी और चाइनीज बहुत सारी चाइनीज जो एक्सपोर्टर थे उनके बीच में, वो अभी हम बहुत से कंज्यूमर सोचते हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सोचते हैं कि भाई क्या करें यार, चाइना का माल बड़ा सस्ता है और हम जो बनाते हैं वो महंगा पड़ता है, तो इससे चाइना का कंपटीशन नहीं किया जा सकता, तो क्या करें। अपने आप को हेल्पलेस समझते हैं कि भाई क्या करें यार इसमें। तो उसमें लीगल प्रोविजन अवेलेबल है, तो अगर आपसे कोई मैन्युफैक्चरर या इस तरह के कोई जुड़े हैं आपके नेटवर्क में जो इस पे कुछ बातें चाहें, लीगल एस्पेक्ट उसमें देखना चाहें, तो उसमें कभी भी मुझे बता सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक केस चाइना और इंडिया के बीच में किया हुआ है कि चाइनीज कंपनी पे इतनी हैवी ड्यूटी लगाई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो अपने प्रोडक्ट को इंडिया के मैन्युफैक्चरर से सस्ता नहीं बेच पाते। तो अगर ये अवेयरनेस नहीं है, अपने देश में ऐसी अवेयरनेस है नहीं, तो अगर कोई ऐसा हो आपके पास, जैसे आपने कॉमर्स में आप देख रहे हैं, तो कॉमर्स आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके जो स्टूडेंट हैं वो कल जाके देश में बड़े मैन्युफैक्चरर बनेंगे या किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करेंगे, तो उनको अगर थोड़ा सा इस चीज का नॉलेज हो तो वो अपने एम्प्लॉयर को या खुद भी उसकी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बनता हो तो कभी मुझे बताना। बिल्कुल सर, और इसके साथ मैं जोड़ देना चाहता हूँ सर, नीचे जो हम YouTube चैनल देख रहे हैं 750 सब्सक्राइबर हैं, उसके अलावा 500 स्टूडेंट यूटीडी के एल्यूमनी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, यानी करीब 2000 लोगों का नेटवर्क मेरे पास है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर केस को लेकर के हम एक दिन ओपन डिस्कशन या ओपन डिबेट भी कर सकते हैं, जब मान लीजिए आपके पास उचित टाइम हो, ताकि मैं उन एल्यूमनी को भी जोड़ दूं साथ में, और साथ में जो कॉमन मैन जो आना चाहे उनको भी जोड़ दूं। करेक्ट, राइट सर, आई विल डू माय बेस्ट and you will speak on that event, and then we can explain each and everything, what is the pros and cons and how it will be implemented, because of this channel is meant for the awareness program। क्योंकि हमारे सर इस चैनल के माध्यम से हम क्या करते हैं कि हर हफ्ते 2 स्पीकर्स होंगे ही होंगे, इस पे सैटरडे या संडे में हो सकता है, फ्राइडे संडे में हो सकता है। ये कड़ी एक मुहिम डिपार्टमेंट कॉमर्स की तरफ से हमने चलाई है। यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट कॉमर्स में चेयरमैन होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स या चाहे एल्यूमनी है, चाहे लीगल पर्सनैलिटीज हैं, उनको मैं इनके साथ जोड़ूं, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक हम ये कह नहीं सकते कि हम राइट क्लेम करेंगे। तो आई वेलकम यू अगेन सर, कभी भी आप जब टाइम लगे तो आई विल कनेक्ट ऑल दीज पीपल एंड वी विल ऑर्गेनाइज दैट प्रोग्राम ऑन संडे प्रेफरेबली, because of on that day everyone is free, right sir? Right. आपके आगामी आदेश की प्रतीक्षा रहेगी। मेरे नहीं, आप देख लें विद्यार्थियों को अगर ऐसा लगे, क्योंकि चाइना से ना सिर्फ भारत त्रस्त है, पूरा विश्व त्रस्त है, तो मगर इंटरनेशनल ट्रीटीज भी होती हैं, जेनेवा कन्वेंशन भी है। इन सब के बीच में कौन से ऐसा रास्ता निकल सकता है कि इंटरनेशनल ट्रीटी भी ना टूटे, कोई और जो कन्वेंशंस हुए विश्व के बीच में, यूनाइटेड नेशंस के बीच में, वो सारे भी ना टूटे, और देश के पास क्या कोई ऐसा हथियार है कि हम चाइना के
ये जो सस्ता माल वाला है जो हमारी इकोनॉमी को खराब कर रहा है, वो या हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लॉस क्रिएट कर रहा है, क्या हम लीगल प्रोविजंस का यूज करके उनको लॉस को भरपाई कर सकते हैं क्या? जी, हम तो अपने ऐसा बचाएं और इकोनॉमी को भी बचाएं। हाँ जी, यस, तो ये चीज अभी अपने पब्लिक डोमेन में है नहीं, क्योंकि सब लोग जानते नहीं है। आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। हम आपको इसी तरह जोड़ते रहेंगे और हर कड़ी के साथ अवेयरनेस हम क्रिएट करते रहेंगे। जी, आप सभी का धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जय हिंद। नमस्कार। जय चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा। जय हिंद। थैंक यू सर। Now all the audience, I am again requesting you all, you can leave this meet if you are willing to say something in this regard. You can unmute and you can speak. सत्यनारायण जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर जसविंदर जी। प्रोफेसर सिन्हा जी नमस्कार, आप जुड़े, अच्छा लगा। नमस्कार जी, नमस्कार। अच्छा प्रोग्राम कराया आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। काफी अच्छे आपके रिसोर्स पर्सन, काफी अच्छा क्वेश्चन और सारे क्लास के जवाब दिया। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। जी जसविंदर जी नमस्कार। सर बस बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू वेरी मच सर। ये जो चाइना वाला ये भी ना, ये एस्पेक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर लीगल प्रोविजन है तो व्हाई नॉट टू प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमी। सर मैं सर से टाइम लेकर के नेक्स्ट वीक में ही इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करूंगा, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। राइट सर। ठीक है, ओके सर, ओके, गुड बाय। थैंक यू सर।